بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تازہ نیوز کے ساتھ ماسی مصیبت حاضر ہے۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اب چلتے ہیں نیوز کی طرف۔ خبر یہ ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف نے آپس میں ایک بڑی گل طے کر لی ہے، اور وہ بڑی گل جو ہے اس کے طے جو ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس طے کے نتیجے میں بہت ساری تہیں کھل جائیں گی۔ ایک پورے کا پورا نیا سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہو سکتا ہے۔ وہ جو انہوں نے آپس میں طے کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے دو باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں صبح کا رولا پیا کہ بابا بائیڈن نے پتہ نہیں کی پٹ سیاپا پاتا ہے، اور پتہ نہیں کتوں یاد آ گیا کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک بے قاعدہ قسم کا ملک ہے، جس کا جو اس کا نیوکلیر پروگرام ہے وہ بھی پائن کسی نے کہ کو ایچ نہیں گا، اس طرح کی اس نے بات کر دی۔ اور یعنی جیسے تاثر یہ ملا کہ جناب وہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں ان کے اوپر ایک سوال اٹھا دیا گیا ہے کہ ایسے ملک کے پاس ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے۔ یعنی وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کے پاس یہ والی صلاحیت نہیں ہونی چاہیے جوہری۔ اچھا، اب یہ بات آج سے نہیں کی جا رہی سر کہ پاکستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات جو ہے وہ امریکہ تو رشیا کے بارے میں بھی یہی کہتا تھا، ٹھیک ہے، امریکہ گل چین دے بارے بھی یہی کہتا ہے۔ امریکہ کا کی ہے، امریکہ کے نو کیا کہنا چاہیے وہ لگا ہے جو جد ہے وہ خلاف ہوندہ دے بارے گل کہہ دیتا ہے، کیونکہ ڈاڈیاں نے ستا بھی سو ہوندہ ہے، وہ سب سے طاقتور ہے، لہٰذا وہ ہر ایک کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ لیکن میرے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ بابا بائیڈن نو بنیا کی اچانک ہی بابا بائیڈن جو ہے وہ یعنی ساڈے رخ کر بیٹھا ہے۔ میں پہلے ولاگ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، میرے لیے حیرانی کی بات تھی کہ آخر معاملہ کیا ہے، خبر کمپلیٹ کیوں نہیں ہے یہاں پر جیو سمیت کسی بھی ٹی وی کے اوپر۔ تو پھر میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، ویسے تھوڑی سی نہیں کی، زیادہ کرنی پئی، بہت زور لانا پیا، کافی سارے فون کرنے پڑے اور کافی ساری جگہوں کے اوپر جا کر چیک کرنا پڑا، پھر مجھے اصل بات سمجھ آئی۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ ایک 3 روزہ تقریبات ہو رہی ہیں جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی، اور یہ ڈیموکریٹ پارٹی ظاہر ہے بابا بائیڈن کی پارٹی ہے، اور اس کے لیے بابا بائیڈن نے اس کا لیڈر ہونے کی حیثیت سے 45 صفحوں پر مبنی کچھ نکات لکھے ہیں دنیا کے مختلف ممالک اور ان کے درمیان، جو خطوں کے درمیان آپس میں پائے جانے والے تنازعات ہیں، اور جن کو امریکہ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے یا پڑ سکتا ہے، اس سارے معاملات کو انہوں نے 45 صفحوں پر ایک جو ہے نا نکات وہ رائٹ ڈاؤن کیے اور اپنی پارٹی کی اس تقریب میں بھجوا دیے کہ جناب میری نظر میں یہ معاملات اہم ہیں، اور ان معاملات کو آپ نے نظر میں رکھ کے اگلی پالیسی بنانی ہے، جو ظاہر ہے کہ ہر پارٹی کی اپنی ایک پالیسی بنتی ہے۔ یہ وہ سارا قصہ ہے جس میں پاکستان کا تذکرہ آیا ہے، اور پاکستان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بات وہاں پر کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ پاکستان کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے، یعنی نان نیٹو الائے بھی نہیں رہا اب تو نا، پہلے تو نان نیٹو الائے تھا، لیکن اب تو ہم نیٹو الائے بھی نہیں ہیں، نان نیٹو الائے بھی نہیں، اسی کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں، یعنی کسی ایسے دنیا کی سطح کے اوپر کسی ایسی سیکیورٹی کے بندھن میں لڑی میں ہم نہیں پروئے گئے ہوئے جس کے تحت ہم کسی معاہدے کے کسی قانون کے تابع آتے ہوں۔ ہاں، ہم ایک قانون ہے جو پوری دنیا میں جو مطلب ہے کہ ایتھوپیا تے لگتا وہی ساڈے تے لگتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ جناب کہ یو این او ہے، یعنی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے، اور ہم اس کے انڈر آتے ہیں۔ اتنے جڑے قوانین لگتے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر وہ سب پہ لگتے ہیں، وہ ہم پہ بھی لگتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو وہ اس کے علاوہ کسی معاہدے کے ہم پابند نہیں ہیں، وہ ایکچولی اس میں یہ بات کی گئی تھی، لیکن یہاں پر چیزوں کو اور طریقے سے اچھالا گیا اور پھر اس پر بہت زیادہ بنترا کیتیاں گئیاں اور اینا پہاڑ کٹھا کرتا گیا، جس کے نتیجے میں ایک پاکستان کا جو سیاست کا اندرونی ماحول ہے نا سر، وہ کافی زیادہ گرم جو ہو گیا۔ اچھا، میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ انٹرنیشنل معاملات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں، اور میں نے جن لوگوں سے بات کی وہ ظاہر ہے ان میں ایک آدھا کو غیر ملکی بھی شامل ہے، تو وہ ذرا ہنس جے رہے سن، وہ کہتے یار
साडा मुल्क तो बड़ा हास्य वाला करैक्टर है। ये तो चेक ही इन्होंने किया कि जनाब ये जो बात वो बाबा बाइडन कह रहा है ये कुछ स्पेशल कुछ तकरीर करके नहीं कह रहा, ये किसी इंटरव्यू को में प्लान करके बात नहीं कह रहा, वो तो सिर्फ अपने पार्टी को कुछ गाइडलाइंस दे रहा है और बता रहा है कि यार फलाने मुल्क का यह मसला है जे, फलाने का है जे, चीन का है जे, ईरान का है जे, फलाने का, तो उसमें पाकिस्तान का भी बता रहा है कि ये न्यूक्लियर पावर है, लेकिन ये किसी मुआहदे का पाबंद नहीं है न्यूक्लियर मुआहदे के हवाले से। तो लिहाजा ये इस हवाले से आपने जो पॉलिसी बनानी है इस चीज़ को मद्देनजर रख के बनानी है। एनी जी टोटल गल है, लेकिन आपके मुल्क में तो पाइन पूरा अजाब पै गया। अच्छा, अब ये जो अजाब डाला गया उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने बड़ा एक फर्मली और बड़ा टाइमली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा भावें तुसीं भावें गल एवें भी कीती, लेकिन तुहाडे दिमाग 'च गल है ना, असीं तुहानूं दस दईए यह साडा हक है, हम अपने मुल्क की इस सलाहियत को हर हवाले से प्रोटेक्ट करेंगे। हम अपने मुल्क की सरहदों को, उसके नज़रिए को, उसके जोग्राफिए को, उसकी इकानमी को, उनके लोगों को प्रोटेक्ट करने का हक रखते हैं। ये हमारा हक है, हम इस पर स्टैंड करते हैं। तो आपके सफ़ीर को बुला के जो है ना बाकायदा डिमार्च करेंगे और यानी आपको अपना कंसर्न बचाएंगे कि बाबा बाइडन को अगर तो ध्यान करें। ये एक्चुअली उस सारी बात का मतलब ये था। और तरीके साहब बाकी इमरान खान ते भाएं ज़ाहिर है उन्होंने तो काम है कि इधरों कुछ होवे या ना होवे, उन्होंने भाएं ढोल कटे ने तो बजाई जा रहे हैं। अच्छा, अब वो अपोजिशन में है तो अपोजिशन का यही काम होता है, लेकिन इमरान खान जो काम कर रहे हैं वो अपोजिशन तो हट के कोई काम कर रहे हैं, वो किसी बुग़्ज़ ही लगा है। बाहर चले, ये उसकी सियासत है, उसको करने का हक है, वो करते रहें। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दूसरी जो मैंने बात आपसे करनी है, इमरान खान का जिक्र है तो ARY का ना है, ये कैसे हो सकता है? ARY एक केस हार गए हैं। फ़खर दुरानी साहब एक बड़े रिपोर्टर हैं, अच्छे रिपोर्टर हैं, और वो केस उनके आगे ARY हार गया है इंग्लैंड के अंदर। फ़खर दुरानी साहब ने सुबह एक वो की हुई थी, ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने कहा जी कि वो लंदन में केस हार गया, हमने किया था और ARY हार गया है, तो बस मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। तो इसहाक सर ने मुबारकबाद दी उन्हें, और ये साल लिखा कि हजूर सिर्फ एक उसमें अमेंडमेंट कर लें कि आप अगर हक पर हों तो आप केस जीत ज़रूर जाते हैं, लेकिन केस अगर आपने लंदन की अदालतों में किया तो फिर जीत जाते हैं। पाकिस्तान ऐसे काम ज़रा औखा जाएगा है, तो वो बात मैंने कर दी थी। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ARY का प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ARY को 14वां-15वां केस है यार, मेरा ख्याल है, उसका मैं नंबर गलत कर रहा हूँ, लेकिन इतने बड़े केस ये दर्जन तो बाद केस भाई और गया है। वजह क्या है? सर वजह यह है कि वहाँ पर एडिटोरियल बोर्ड कोई नहीं है। हालांकि वहाँ बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं। काशिफ बासी साहब बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पर मज़हर अब्बास साहब रहे हैं डायरेक्टर न्यूज़, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनको चीज़ों का इल्म है। वहाँ पर और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मसला ये है कि वो उनकी जो मैनेजमेंट है ना वो किसी को इख्तियार नहीं देती एडिटोरियल पॉलिसी बनाने का शायद, जिसकी वजह से वो केस हारते चले जाते हैं। मैं आपको आज ही की एक मिसाल देता हूँ। आज हुआ ये कि मैं सुबह तकरीबन को 11:30-12 बजे का टाइम होगा, तो मैंने टीवी ऑन किया तो ARY सबसे पहले नंबर पे आता है मेरे घर के पास से, पता नहीं क्यों आंदा, लेकिन आंदा है पाइन। तो वो ज़ाहिर ऑन हो गए और वहाँ पर बीपर था, कोई ज़ियाउल हक साहब हैं उनके रिपोर्टर शायद पेशावर से, वो बीपर दे रहे थे और वो कह रहे थे कि जो तहरीक वहाँ पे अपोजिशन के MPs हैं KP के असम्बली में, उनकी तादाद 51 है, और उन्होंने एक ख़त लिखा है वजारत ख़जाना को कि सैलाब ज़दगान के लिए आपने साड़ी तनहा जो कि रुपया भी नहीं करना, हम एक पैसा भी इस मद में नहीं देना चाहते। अब ये एक बीपर है जो उन्होंने दिया है। अच्छा, अब इसके बाद मेरा अंदर का जरा साफ़ी है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके फौरी बाद अब वो उनसे बात करेंगे जो ये ख़त लिख रहे हैं कि बावजूद तानू क्या है, सारी दुनिया तो पाकिस्तान इमदाद मांगता फिरता है और आप कह रहे हैं आपने 1 रुपया नहीं देना। तो मदद तनख्वाह कितनी होती है MPA की? 4 लाख होगी, 3 लाख होगी, तो ओचो आपने एक दिन की तनख्वाह देनी होगी, हफ्ते की देनी होगी सर, तो मतलब देनी चाहिए। अगर महीने की भी देनी है तो देनी चाहिए। हमारे भाई हैं जो इस इतनी शदीद मुश्किल का शिकार है। तो मैं हैरान था कि सर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ से सर उन्होंने जो इसके इस खबर के जवाब में जिस बंदे को लाइन पे लिया वो वहाँ के वज़ीर ख़जाना हैं, PTI के रुकन हैं, तैमूर झगड़ा शायद उनका नाम है, और वो झगड़ा साहब वही हैं
जिन्होंने कहा था कि मैं खत लिख, जिन्होंने खत लिख भी दिया था वो शौकत तरीन के कहने के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान जो है वो IMF मुआहदे की तुसी कर लो जड़ा मर्जी मुआहदा, KP के गवर्नमेंट उसकी पाबंदी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये वो भाई साहब है, उनको लिया सर लाइन के ऊपर, कोई 7-8 मिनट सर वाह रगड़ा फेरिया उन्होंने जो है अपना अपोजिशन को कि खत लिखता। अब आगे से झगड़ा साहब ने क्या कहना है, अरे झगड़ा साहब ने तो अपनी पार्टी का मौका बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, और जो अपोजिशन है उन्होंने भाई उन्होंने रंधा फेरना है, ठीक है। तो रंधा वाह फेरिया उन्होंने, लेकिन जो दूसरी साइड है उधर मौका भी कोई नहीं आया। अच्छा, अब ये सारी हरकतें जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर शायद चल जाती हैं, ठीक है, लेकिन यकीन कीजिए ये रेगुलर मीडिया के ऊपर ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो हद तक इज़्ज़त का कानून है ना, ये कानून मौजूद है, और उसी तरह का कानून है जिस तरह का अमेरिका में या बरतानिया में मौजूद है। प्रॉब्लम यह है कि कानून तो भाई सारे ने अमल किसी पासे नहीं है, ठीक है। अगर इस कानून पर अमल होना शुरू हो जाए ना, यकीन करें, मैं आपको ऑनेस्ट टू गॉड जो बात बता रहा हूँ, 3-4 TV चैनल रहन बस, ते 2-3 ही अखबार रहन, बाकी सारे बंद हो जाए। लोगों की हर शह जी है ना वो विक वका जाए इस चक्कर जी, इसलिए कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर झूठ से पाए नसी बोलने हैं पूरे गिट्टे जोड़ के, सच बोलने की हमें आदत ही नहीं। हमें ये इल्ज़ाम लगाना ते पाए मसले कोई नहीं। और अगर ये कानून सिर्फ अमल दरामद हो जाए, आप यकीन करें कि अद्धे तो बहुते सियासतदान भी कंगले हो जाए, वो भी घर बैठे हों। सिर्फ इस कानून पर अमल करने से पूरे का पूरे मुल्क का निज़ाम बदल सकता है, और मैं ये समझता हूँ कि इस पर अमल होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं अमल करते। इस्टेब्लिशमेंट के लोग रुकावट है, अदलिया रुकावट है, सियासतदान रुकावट है, ये जरा सेठ मीडिया है, ये जो सेठों का एक माफिया है पूरे का पूरा, ये रुकावट है। पता नहीं कौन रुकावट है, लेकिन रुकावट है पाए। इस पर हजूर अमल करा दें जो भी बाख्तियार लोग हैं, आप यकीन करें कि इंज तीर तुक्के की तरह सीधे हो जाएंगे पाए, कोई भी बंदा बात नहीं करेगा। इसमें हमारे भी बहुत सारे जो है ना, जो क्या कहते हैं मतलब राह जाते साड़ियाँ भी कुछ थावां ऐसी भी लिवरेज ला लेने हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोग ले लेते हैं, वो भी इंसान बन जाएंगे, नहीं कर सकेंगे फिर। और वो मैं समझता हूँ कि होना ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है। सर झूठ बस कर दो। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एयरवे जो NWA के केस आ रहे हैं, हालांकि एयरवे यार एक बड़ा अच्छा पे मास्टर है, बतौर एक कारकुन साफी है मैं ये समझता हूँ कि एयरवे चैनल को चलना चाहिए। मैं ये बात पे यकीन रखता हूँ कि उनको आज़ादी इज़हार का मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन हजूर बात यह है कि जिमें तुम केस हार रहे हो, तुम तो हर शहर जाओगे पाए तो बंद हो जाएगा फाइनली। तो बेहतर यह है कि अपनी कोई एडिटोरियल पॉलिसी बनाए, यहाँ पर दूजे का मौका भी लवो ना पाए, दूजे की भी गल सुन, दूजे को भी कहने दे, हुकूमतां की गल तो हुकूमतां से रहने दे। मतलब मेरे कहने का यह है कि एयरवे को दूसरी साइड भी लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं लेते, लिहाजा वो केस हारते चले जाते हैं। तो मैं एक्चुअली ये आपकी तरफ गोशगुजार सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि एयरवे और इमरान खान चोली दामन का साथ है, इसी तरह बोल्ड TV चोली दामन का साथ है। तो मेहरबानी करो जरूर चोली दामन जरूर रखो, लेकिन दूजे की गल भी कर लो, वरना चीज़ा खराब हो जाएंगियाँ। अब मैं आने लगूँ असल बात की तरफ, और असल बात यह है कि असद जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान हुआ पैन रबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूजे की ज़ाहिर तबीयत पूछी ज़ाहिर है, दोवें बुजुर्ग ने तबीयत तो पुछनी होनी है, दोवें हार्ट पेशेंट ने, तबीयत पुछनी ही पैंदियां ने। दोनों के ऊपर बुरा वक्त रहा है और अभी भी किसी हद तक है, तो लिहाजा तबीयत पूछनी पड़ती है। लेकिन जो चीज़ तय हुई है वो ये हुई है सर मेरे ज़राए के मुताबिक कि जनाब जो कल का दिन है, यानी कल जो है अपना संडे, और संडे को इलेक्शन है। इलेक्शन मैं 7 कौमी असम्बली की सीटों या 8 कौमी असम्बली की सीटों के इलेक्शन के वाले से बात नहीं कर रहा, ये मैं 3 सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं पंजाब के अंदर उसके वाले से बात कर रहा हूँ। वो 3 सीटें ख़ास तौर पर डिस्कस हुई हैं और कहा गया है कि जनाब तय ये किया गया है कि जनाब अगर इन 3 सीटों के रिज़ल्ट हमारे हक़ में आए तो भी, अगर हमारे खिलाफ आए तो भी, ते नंबर देख के ते परवेज़ लाई दा फट्टा खींच दो, और चीज़ों को फिर अब दूसरी रुख पर लेके जाने की ज़रूरत है। इसीलिए कि अगर हम अब इस तरफ ना गए तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। ज़राए ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने असद जरदारी साहब को इस बात का गो हेड दे दिया है कि जनाब अगर आपके पास नंबर पूरे हैं हजूर तो जरा मर्जी वज़ीर ला लो,
मेरी पार्टी जो ला लो, अपनी पार्टी जो ला लो, चौधरी शुजात की पार्टी जो ला दो, जेड़ा मर्जी ला लो, हमें ज़रूर फिर पंजाब के अंदर चेंज लेके आना चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़ाहिर है कि आपको वड्डा घर भी चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि वड्डे घर नाल ज़ाहिर है तुहानूं पता जरदारी साहब का राबता रहिंदा है, तो वड्डे घर नूं भी चेक कर लो, और जो है अपना छोटा घर, ठीक है, उन्हें भी चेक कर लो। दोवें घर चेक करके तो उसके बाद आप चाल फेंक दे। अब कल जो इलेक्शन हो रहा है यानी इतवार के रोज़ 16 अक्टूबर को 3 नशिस्तों के ऊपर, उसमें सर जो मेरे पास इतलात हैं और जो ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हैं और एक दो आज़ाद ज़राए से भी हैं, उसमें सर ये है कि जो एक शरकपुर की सीट है और एक सर खानेवाल की है और एक बावल नगर की है। तो बताया जा रहा है कि बावल नगर और शरकपुर वाली सीट तो मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, जो खानेवाल वाली सीट है वहाँ पर मुकाबला टफ है और वहाँ पर तहरीक इंसाफ जीत सकती है। अब ज़ाहिर है फैसला लोगों ने करना। मैं आपसे फिर अर्ज़ करूँ कि ये वो रिपोर्ट है जो नून लीग को गई हुई है, उनकी लीडरशिप को, और एक जो क्या कहते हैं है अपना आज़ाद ज़राए उनकी तरफ से है। यानी आज़ाद ज़राए से मुराद है ज़ाहिर रिपोर्टर जो मौके पर ग्राउंड पर मौजूद है, मैंने वहाँ पर वो बात की, तो उनका अपना एक हो सकता है टिल्ट भी हो, बरादरी को कुट रहा हो सकता कोई मतलब है कि लफाफा कुट रहा है, को मैंने नहीं पता, मैंने तो वहाँ पर जो बात की है मैं वो उस हिसाब से बात करूँ। तो ये है, लेकिन असद जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तय कर लिया है कि जनाब अब पंजाब के अंदर चेंज लाया जाएगा, और ये चेंज जो है ये बहुत बड़े एक इफ़ के साथ लटका पड़ा है। और वो इफ़ जो है वो ये है कि भाएं नूं वड्डे चोरी हो रही, जड़े ना वड्डे चोरी हो रही, वड्डा घर जड़ा उन्होंने भी देख लेता जाए और छोटे घर में भी देख लेता जाए। छोटा घर कौन सा है? अब मैं किसी को छोटा दस देंगे कि फलाना छोटा घर है, तो अगला माइंड कर देगा तो मेरे तो बहुत बड़ा हो, फिर भी मुझसे तो बहुत तगड़े है, तो मैं लिहाजा किसी को छोटा नहीं बताना चाहता। जो छोटे हैं उनको समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बड़े घर और छोटे घर में चेक करने तो बाद अगर नंबर पूरे हैं तो परवेज अली का फट्टा खिंच देता जाए, ये उन दोनों के दरमियान तय पा गया। और भी बहुत सारी चीज़ें तय पाई हैं, वो मैं फिर आपको कोशिश करता हूँ कि अगले व्लॉग में बता दूँ। तो फ़िलहाल जो है वो इतलात जो थी वो मैंने आप तक पहुँचा दी हैं। आप दूसरी दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।